بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آج ہم ظالم چیل کی کہانی پڑھیں گے۔ ایک پیڑ پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ پیڑ پر اس نے گھاس پھوس کا ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا اور اس میں اس کے 2 ننھے منھے بچے بھی تھے۔ ان بچوں کو دنیا میں آئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ پہلے بچے ہونے کی وجہ سے چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں بڑے لاڈ و پیار سے پال پوس رہی تھی۔ وہ دانے چن چن کر لاتی اور بڑے پیار سے انہیں کھلاتی تھی۔ یہ چڑیا بہت ہی نیک اور رحم دل تھی۔ اکثر دوسروں کے دکھ درد میں کام آتی رہتی۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہمیشہ اس کی رحم دلی کا گن گایا کرتے تھے۔ ظلم سے بھی اسے سخت نفرت تھی اور ہمیشہ اس کی یہی کوشش رہتی کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور ملے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانے لے کر لوٹی تو یہ دیکھ کر وہ غم سے پاگل ہو گئی کہ ایک چیل پیڑ پر بیٹھی اس کے لاڈلے بچوں کو چٹخارے لے لے کر کھا رہی ہے۔ غم سے نڈھال ہو کے چڑیا کے منہ سے سارے دانے گر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت تک چیل اس کے بچوں کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ چڑیا چیل کے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ان ننھی ننھی جانوں کو سخت سزا دی؟ یہ سن کر چیل نے چڑیا کو خونخوار نظروں سے گھورا اور چیخ کر بولی، یہاں سے فوراً چلی جا اور ورنہ تیرے بچوں کی طرح تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پر جھپٹ پڑی۔ چڑیا فوراً پھر سے اڑ گئی اور اس کے چنگل میں آنے سے بال بال بچی۔ چڑیا کے جاتے ہی چیل نے دونوں بچوں کو بڑے اطمینان سے کھایا اور پھر اپنی راہ پر چلی گئی۔ اس حادثے سے چڑیا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کئی دن تک وہ اتنی غمگین اور اداس رہی کہ ایک دانہ بھی حلق سے نہیں اتر سکا۔ ہر وقت بچوں کو یاد کر کے رویا کرتی یا کسی ڈالی پر اکیلی گمسم سی بیٹھی رہتی۔ چند دن بعد اس کی کچھ حالت سنبھلی اور اس نے اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیا کہ وہی اس ظالم چیل کو سزا دے گا۔ اس واقعے کے بعد چیل چڑیا کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ چند مہینوں کے بعد چڑیا نے پھر انڈے دیے۔ کئی دنوں تک وہ انڈوں کی حفاظت کرتی رہی اور ایک دن انڈوں میں سے بچے بھی نکل آئے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی چڑیا پرانا غم بھول گئی اور پہلے سے زیادہ لاڈ پیار سے اپنے ان بچوں کو پالنے لگی۔ لیکن یہ خوشی بھی اس کی قسمت میں زیادہ دنوں تک نہیں تھی۔ ابھی ان معصوم جانوں کو دنیا میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن جب کہ چڑیا ان کے لیے دانے لانے گئی تھی، اچانک آ کر چیل نے انہیں بھی کھا لیا۔ وہ واپس آ کر چڑیا کو اس حادثے کا علم ہوا تو ایک بار پھر اس پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی۔ مجبور اور بے بس چیل سے انتقام تو نہیں لے سکی، ہاں بہت دنوں تک بچوں کے غم کی آگ میں خود ہی جلتی رہی، اور جب حالت سنبھلی تو اس ناانصافی کا فیصلہ بھی خدا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد ایک بار یہی ہوا۔ اب تو چڑیا ہمیشہ ہی اداس رہنے لگی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ ڈالی ڈالی چہچہانا اور خوشی کے گیت گانا اس کے لیے خواب و خیال بن کر رہ گیا۔ ہر وقت خاموش خاموش اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک تالاب پر سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی پانی کی لہروں میں الجھی ہوئی جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس کا ننھا سا دل پیار سے پھڑپھڑا اٹھا۔ وہ پانی کی سطح کے قریب پہنچی اور شہد کی مکھی کو اپنے پنجے میں اٹھا کر خشکی پر لے آئی۔ کچھ دیر تک مکھی اپنے حواس پر قابو پاتی رہی اور پھر چڑیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ احسان مند لہجے میں بولی،
चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरे बच्चों पर बड़ा एहसान किया है। मैं मर जाती तो मेरे मासूम बच्चे भी बेमौत मर जाते। मक्खी की बात सुनकर चिड़िया को अपने बच्चे याद आ गए और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिड़िया को रोते देखकर पहले तो मक्खी हैरत अदा सी रह गई, फिर कुछ सोचकर बड़े प्यार से इसके रोने का सबब पूछने लगी। चिड़िया ने अपनी सारी दास्ताने गम सुना दी। सुनकर मक्खी को बहुत ही दुख हुआ और वो इसे तसल्ली देते हुए बड़े खलूस और एहसानमंदी से बोली, बहन, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मैं एहसान का सिला तो नहीं दे सकती, लेकिन चील से इसके जुल्म का बदला लेने में तुम्हारी भरपूर मदद करूंगी। इस काम में अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। मक्खी का खलूस देखकर चिड़िया का दिल भर आया और इसके नन्हे नन्हे बच्चों का ख्याल करके चिड़िया ने इसे इस खतरनाक काम से रोकना चाहा, पर मक्खी नहीं मानी। वो बोली, मेरे बच्चों की फिक्र मत करो, इनका अल्लाह मालिक है। बहन, मैं तुम्हें अपने खलूस की कसम देती हूँ कि इस बार जैसे ही तुम्हारे बच्चे हों मुझे फ़ौरन ही खबर कर देना, क्योंकि वो जालिम चील फिर तुम्हारे बच्चों पर जुल्म करने की कोशिश करेगी और ये जुल्म मैं अब हरगिज़ भी तुम पर होने नहीं दूंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घरों की तरफ चली गईं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों बाद ही चिड़िया ने फिर अंडे दिए और इन बंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे भी निकल आए। इस मर्तबा चिड़िया फूली नहीं और इससे पहले कि चील इसके बच्चों पर हमला करती, इसने फ़ौरन ही शहद की मक्खी को इत्तला कर दी। मक्खी ने पहले से ही शहद की मक्खियों की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी और इस वक्त का बेताबी से इंतज़ार कर रही थी। खबर मिलते ही वो अपनी फौज को लेकर उड़ी और जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, इसके पत्ते पत्ते में तमाम शहद की मक्खियों को छुपाकर चील का इंतज़ार करने लगी। चंद दिनों तक तो चील का साया तक नजर नहीं आया। फिर जैसे ही बच्चों ने ची ची की आवाज़ें निकालना शुरू की, इनकी आवाज़ सुनते ही चील दनदनाती हुई आ गई। चिड़िया भी इस वक्त बच्चों के पास घोंसले में ही बैठी हुई थी। चील को देखते ही वो बोली, ए चील, तू मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत जुल्म करती है और जुल्म खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ कि ये बुरी आदत छोड़ और खुदारा तू खुद भी सुकून से रह और मुझे भी सुकून से रहने दे। ये सुनते ही चील ने बड़े घमंड से कहा, अपनी नसीहत अपने पास ही रहने दे। मैं तो बस सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि खुदा ने मुझे ताकत दी है, तू मुझे इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी खैरियत चाहती है तो अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दे। चिड़िया को अब भी चील पर तरस आ रहा था, इसलिए इसने फिर समझाने की कोशिश की। देख बहन, फिर कहती हूँ कि खुदा ने ताकत इसलिए नहीं दी है कि इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए। जुल्म की उम्र बहुत कम होती है और इससे पहले कि तुझ पर भी कोई तबाही आए, मेरी बात मानकर जुल्म से तौबा कर ले और तू देखेगी कि इसमें तेरा ही फ़ायदा है। चील अपनी ताकत के नशे में चूर थी। चिड़िया की नसीहत इसे इतनी बुरी लगी कि गुस्से में आकर वो चिड़िया और उसके बच्चों पर झपट पड़ी। मक्खी देर से इस मौके का इंतज़ार कर रही थी। चील को झपटते देखकर वह तमाम मक्खियों के साथ तेज़ी से पत्तों की आड़ से निकली और चील से चिमट गई और सब ने काट काट कर इसका बुरा हाल कर दिया। चील ने ज़ोर से पर फड़फड़ाए, इन्हें अपने बदन से झटकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मक्खियाँ अलहदा होने के लिए नहीं बल्कि इसका खात्मा करने के लिए इसे चिमटी थी। चुनाचा जितना चील इन्हें झटकने की कोशिश करती, इतना ही ज़्यादा ज़ोर से वो इसे काटती। चील बेबसी से चीखती और चिल्लाती रही और फड़फड़ाती रही। मौत को सर पर देखकर इसको अपनी संगदिली का एक एक वाक़या याद आने लगा। जान बचाने के लिए इसने मक्खियों की बड़ी आर्जी और खुशामद की, लेकिन जैसे इसने किसी पर रहम नहीं किया था,
किसी मक्खी को भी इस पर तरस नहीं आया। शहद की मक्खियों ने काट काट कर थोड़ी देर बाद ही इसे इसके जुल्म के अंजाम तक पहुंचा दिया। चील के मरते ही चिड़िया खुश होकर अपनी सहेली मक्खी के पास आई और इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मक्खी अपने तमाम साथी मक्खियों को लेकर अपने घोर लौट गई और चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। सच है, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ताकत अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। अगर वो किसी की मदद के लिए हो तो वाकई में इस ताकत की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अगर ऐसी ताकत जो गरीबों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाए फिर वो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी सोचना चाहिए कि जो कमज़ोर होता है इसीलिए ताकतवर उस पर जुल्म करता है, तो ख़ुद को भी ताकतवर करने की कोशिश करनी चाहिए कि ताकि किसी और को आप पर जुल्म करने की हिम्मत ना हो। तो यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करना चाहिए और ख़ुद को ताकतवर करना चाहिए और किसी के ऊपर जुल्म भी नहीं करना चाहिए अगर अल्लाह ताला ने हमें इसकी ताकत दी है तो। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।